ਟਿਕਟਾਕ ਚ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ, ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ? ਥੱਲੇ ਟੌਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪہ کمنٹساں جو مفتی صاحب اچھا جی، تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان چیک کریں اور یہ کریں وہ کریں، کیونکہ آج جو ہے وہ ٹاپک ہی ہم نے یہ لگایا کہ مرزے کی گالیاں، ٹھیک ہے؟ تو اگر مرزے کی گالیاں کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو گالیاں بھی وہ ثواب کا کام، وہ کہتا ہے گالیاں دینا ثواب کا کام۔ ہلو پڑھو ہاں نہیں مرزا قادیانی خود کہتا ہے گالیاں ثواب کا کام۔ گائز پلیز ایوری بڈی ڈبل ٹیپ اینڈ شیئر دا لائف پلیز گائز۔ جی مفتی صاحب، اچھا تو کوئی قادیانی ہو تو آؤ یار، کوئی سامنے آئے، کوئی پھر بات کرتے ہیں، گالیوں پہ ہی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ اچھا چلیں وہ ثواب والی بات پہلا حوالہ دے دوں، ملفوظات جلد اول ہے جی، نوٹ کر لو بھائی قادیانی ہو، گالیاں ثواب کا کام ہے جو مرزا جی دیا کر۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 380 ہے، اور عنوان ہے جناب 4 ستمبر 1900 کی، یہ وہی ہے، یہ ملفوظ ہے جی مرزے کا، اور عنوان یہ دیا ہے جی بڑا ثواب۔ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے ایک دن مولانا عبد الکریم صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گالیوں میں شامل ہو گئے، بڑا ثواب کا کام ہے، گالیاں دینی بڑا ثواب کا کام ہے، یعنی ہمارے ساتھ گالیوں میں شریک ہو گئے۔ یعنی مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی گالیاں لوگوں کو دیتا ہوں اور ہماری بھی گالیاں دیتا ہے، یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہاں جی، تو یہ ثواب کا کام کوئی ہے کوئی قادیانی کرنے والا؟ آؤ بھائی، آؤ کوئی بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس ثواب کے کام کے اوپر۔ ہلو السلام علیکم شاہد بھائی، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ پہچان لیا؟ جی سونے پہچان لیا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے اس کی کتاب نکالی تھی، جی جی منن الرحمان۔ تیمور بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے؟ میں بس وہ علی مدثر بھائی نے جو ان سے وہ آئے ہیں تو انہیں پتہ نہیں شاید چلا، وہ شاہ صاحب بات کر رہے تو وہ بیچ میں انٹرپٹ کر دیا انہوں نے۔ میں بس کوئی یہی نہیں بات کر لی، میں نے ان کا مائک میوٹ کیا تھا، یہ بتا دیں۔ اچھا مفتی مبشر شاہ صاحب، جی جی کتاب کا نام ہے جی شیطانی ہزائیں، جلد 9، صفحہ نمبر ہے 154، منن الرحمان کتاب کا نام ہے۔ جی یہاں پر یہ مرزا قادیانی باپ کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، اور کتنے ہی میں کہتا ہوں کہ روحانیت سے، اور وہ رنگ بھی رومانوی، اور وہ تحریر بھی بڑی ہی، اب میں کیا الفاظ یوز کروں آپ کے سامنے، تو کیا کہتا ہے کہ ابن مریم علیہ السلام کو یہ اختیار ہرگز نہیں تھا کہ اپنی طرف سے لغت تراشی کریں، اور لغت تراشی بھی ایسی بےہودہ جس سے نعوذ باللہ، جس سے سراسر جہالت ثابت ہو۔ پس جس حالت میں لغت نے اب یعنی باپ کے لفظ کو اس سے زیادہ وسعت نہیں دی۔ مرزیو سنو روحانی باتیں، مرزیو روحانی باتاں سنو، ٹھیک ہے؟ اپنی ماواں بھینوں بھی کتاباں سنایا کرو کنجرو۔ اچھا جی، اب یعنی باپ کے لفظ کو اس سے زیادہ وسعت نہیں دی کہ کسی نر کا نطفہ
मादा के रहम में गिरे और फिर वो नुतफ़ा ना गिराने वाले की किसी ताकत बल्कि एक ज़ात की कुदरत से रफ्ता रफ्ता जानदार महलूक बन जाए, तो वो शख्स जिसने नुतफ़ा गिराया लुगत की रूह से अब या बाप के नाम से महसूब हुआ। अब का लफज एक ऐसा मरज़इयो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ जिन्ने भी ने ना, मिर्ज़ा की कहना जे पे सुन लो, कहता है अब बाप अब का लफज एक ऐसा हकीर और जलील लफज है। क्या रूहानी बातां मरज़इया ने, मरज़इयो जिन्ने तुसी प्यो हो ना सारे ही तुसी हकीर ते जलील हो। ए मैं नहीं पे कहना, मिर्ज़ा कहता पे, ते एक बारी नहीं कि अगे ने फिर कहना जे। जब मुफ्ती साहब जरा डेफिनेशन सुनो प्यो दी की देंदा पे। अब का लफज एक ऐसा हकीर और जलील लफज है, इसमें कोई हिस्सा परवरिश या इरादा या मोहब्बत का शर्त नहीं। मिसाल एक बकरा, आय हाय 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 मरज़इयो सुनो की लिखदा। मिसाल एक बकरा जो बकरी पर चुस्त करके नुतफ़ा डाल देता है, एक सांड बैल जो गाय पर चुस्त करके अपनी शहवत का काम पूरा करके फिर इससे लहरा भाग जाता है, जिसके ये ख्याल पे भी नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा हुआ, या एक सूर मरज़ई में कोलो पाया जी वैसे, लेकिन है डेफिनेशन सही है इन्हों दी। एक सूर जिसका शहवत का नहायत ज़ोर होता है और वो बार बार इसी काम में लगा रहता है और कभी इसके ख्याल में भी नहीं होता कि इसके बार बार शहवानी जोश, अच्छा शहवानी जोश, या डबल टैप करो पता नहीं की रिपोर्टा मारते पे कुत्ते दे पुत्रों मैनू आ गई है। अच्छा ठहरो मैं जरा फोटो चेंज कर ला फिर अगे चलते हैं। तकलीफ होंगी है भी कुत्ती मां दे बच्चे मरज़इयो तुहानू हरामीओ। हेलो फोटो एक होर तोहफा लवो मेरे को, स्क्रीन शॉट ले लो एक गश्ती है मुफ्ती साहब है भी एक स्क्रीन शॉट ले लियो वैसे हूँ ऐ ते रिपोर्टा मारो कंजरी दे बच्चे हो कि मिर्जे की केड़ी बगैरती छपाओगे मैनू दसो तुसी हैं, दसो मैनू केड़ी बगैरती छपाओगे मिर्जे की। मुफ्ती साहब है स्क्रीन शॉट ले लिया, नवा ताज़ा आया जो शायद हो सकता तुहानू ये चीज़ का ना पता हो। नहीं जी पता है अब। ठीक हो गया, मैं कहा जे नहीं पता तो फिर तोहफा ही है साढ़े वालों। अच्छा जी की कहता है कि कितने गए जे मरज़ई सूर, हाँ सूर जिसको शहवत का नहायत ज़ोर होता है और बार बार इसी काम में लगा रहता है और कभी इसके ख्याल में भी नहीं होता कि इसके बार बार शहवानी जोश से ये मतलब है कि बहुत से मरज़ई बच्चे पैदा होंगे और हंजीर ज़ादे ज़मीन पर कसरत से फैल जाएंगे। लो जी ए रूहानी बातां ने या असी पे गालां कढ़ने हैं, किताब सामने रखी दी है कंजरो, तो फिर कहते हो तुसी कि तुहाडा अपनी जुबान देखें। और लांती हो असी तो मिर्जे की तबलीग करन दे बगैर तो हद होंदी है यार बेहिसी दी भी। हूँ एक गश्ती है, एक गश्ती कुतब मकतूब है की है दसो ना जरा। लांती किरदार। शाहद भाई अपनी ना माइक बंद करके फिर ओपन करो, थोड़ी आवाज डबल हो रही मेरे ख्याल से। ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ 156 ਸਫਾ ਨੰਬਰ शैतानी हज़ाएं जिल्द नंबर 9 है, पढ़ो ना फिर आ जाओ कोई मरज़ई है उत्ते तो पढ़े इनू। क्या मैं गलत पढ़ना पे? जो बगैरत दा नस्ल लिख गई है वो जो कुत्ते की सट लिख गए, नहीं कुत्ते की नहीं सूर की सट लिख गई है मिर्ज़ा कादियानी, किताब का नाम मनन्नर रहमान, जो वो बगैरती कर गया असी तो ही पढ़ने पे। हद होंदी है लांती थले तो भौंकना आंदा, उत्ते आके जवाब दिओ ना इस चीज़ का।
ਐਸੇ ਮਰੇ ਮੈਂ 2 ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ 2 ਸਫ਼ੇ ਥੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਹੁਣ 2 ਸਫ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਜ਼ਾਏ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 9 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 158 ਮਨੰਨਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀਆ ਹਾਸ਼ੀਆ में वाह जी वाह। मैं ਹੁਣ कहना लानतुल काज़िबीन मरज़ई कंजर जंदीक की लिखदा पिया। ते डेफिनेशन देखो किहदी दे रहा है, बाप और पदर वगैरह इसी अरबी लफ्ज़ की ख़राब शुदा सूरतें हैं जिसको हम इंशाअल्लाह अपने महल पर बयान करेंगे। और ये लुगत की रूह से ये लफ्ज़ चारों मादों के लिहाज से बयान किया गया है। लो जी अब्बा, अब्बा से क्योंकि अब्बा इस पानी को कहते हैं। लो मरदईओ अब तुसी सारे पानी हो, तुसी मरदईओ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? अब्बा से क्योंकि अब्बा इस पानी को कहते हैं जो ख़त्म ना हो, क्योंकि नुतफ़े का पानी मुद्दत दराज तक मर्द में पैदा होता रहता है और इस पानी से हकीमत जो बाल बच्चा पैदा करता है, इसलिए इस पानी के मब्बा अब के नाम से मसूम हुआ। इसी लिहाज से अरब के लोग औरत की शर्मगाह को अबू दारस कहते हैं। वाह क्या क्या हवाले दे रहे हैं मिर्जे। क्या हूँ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ बकवास पे करना है, तो मिर्जे की बकवास जी ਤੁਹਾਨੂੰ सुना रहा। अबू दारस कहते हैं और दराज हैज़ का नाम है, यानी हैज़ बाप का, यानी हैज़ का बाप, चूँकि हैज़ भी एक मुद्दत दराज तक मुंतका नहीं होता, इसलिए इसको भी बतर के मज़ा। लो जी हुण खूह जरा तक लो, मैं किताब का हवाला भी ताकि तुहानूं लभ जाए। तो मरदईओ मैं हुण थोड़ी देर रुक के ना तो मुफ्ती साहब को लेके सवाल करन लगा, खूह वड्डा करन लगा। इत्थों पानी शानी पीओ तुसी, ठीक है। तो मैं मुफ्ती साहब को सवाल कर लिया, खूह जे ते तो पानी पीओ। मुफ्ती साहब हुण एक मैं सवाल ते मासूमाना जिहा सवाल है, तुसी माशाअल्लाह अरबी नूं बड़ी चंगी तरह समझदे हो। सवाल मेरा है वे सरकार हजूर अल्लाह के क्या किसी भी अरबी लुगत की रूह से औरत की शर्मगाह को अबू दारस कहा गया है? नहीं जी, अबू दारस दुनिया की किसी लुगत च नहीं किया गया। मिर्जे कादियानी दी ते अपनी लुगत है ना, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, और किधरे भी नहीं है। मैं हजूर अल्लाह मरज़इयां नूं चैलेंज कीता सी कि कोई मरज़ई कोई मरबी मन्नू अबू दारस अरबी लुगत दे विच दस छड़े कि अरबी अल्फाज दे विच औरत दी शर्मगाह नूं अबू दारस किया गया है। खुदा दी कसम चो के कहना, शायद अपनी टिकटॉक दी आईडी डिलीट कर छड़ेगा, टिकटॉक छोड़ देगा। एडा वड्डा चैलेंज सिर्फ तो सिर्फ एक लफज से बगैर तो मरदईओ पानी पीओ जरा, है इस खूह चो पानी पीओ। हूँ ए तो वड्डा खूह नहीं जो मैं कर सकता, वो भी एक कुआं है। भी तुहाड़ियां औरतां दियां शर्मगावां नूं वो खूह कहंदा पिया मिर्जा कादियानी। अगे तुहानूं वो की कहंदा पिया वो भी तुहानूं दसना वा। लानती किरदारो। तो सानू तुसी आके कहो कि अपनी जुबान देखें। ओए लानतियो, ए ओ शाहिद ए तुहाडे नाल ए नहीं करेगा कि कुरान और हदीस पे बात करे, कुरान और हदीस पे बात करे, वफाते ईसा हयाते ईसा। नो, पहले मिर्जे नूं इंसान दा बच्चा साबित कर दिओ, ठीक है। मैं शाहिद हर मुसलमान नूं इजाजत दे सां कि मरज़इयां नाल कुरान और हदीस ते गल कर लो जी। पहले उन्होंने इंसान का बच्चा तो साबित कर लो जो खुद अपने मूँह कह गया है कि मैं हाकी हूँ प्यारे, ना आदम हूँ ना आदम की ज़ात। वो तो कहना मैं गंडोया मुफ्ती साहब दे माशाअल्लाह तवस्सुर दे नाल इन्नी कि सानू अवेयरनेस हो चुकी है कि मिर्जा इंसान ने सी गंडोया सी। 10 महीने का हमल हो के खोती चो खोता पैदा होया। मैं खोते की इंसल्ट नहीं कहना चाहता, लेकिन गंडोया शंडोया ठीक है, या काना छाना एक मुफ्ती साहब कहते सन काना छाना कह लिया करो। मिर्जे काने के पुत्र ने भी दावा कर देता है, मिर्जे काने के पुत्र ने भी दावा कर देता है कि वो भी खर दिमाग है, यानी खोता दिमाग है मिर्जा जूनियर जेलमी ने। इसे 10 महीने की हामला खोती दे विचों मिर्जा जूनियर जेलमी पैदा होया, खर दिमाग खोते का पुत्र। वो भी ऐसे खूह की पैदावार है जो सामने रखे है। मतलब कि पानी शानी पी लो फिर ताकि मैं खूह परा करा तो अगे टुरा।
ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਲੋਵਰ, ਕੋਈ ਮੰਗੋਲ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਫਾਲੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ WhatsApp ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਛੜੋਲੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਰਦੇ ਮਜਾਜ ਸਾਡੇ ਐਨੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਯਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਕੰਜਰੋ। ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਬੇਗੈਰਤ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੁਣੀਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ हेलो जी, ये आ गई ये वीडियो। इस दुनिया में सबसे पहले इंसान कहाँ से आया था? जो तहकीक हुई है मौजूदा, उसके मुताबिक सबसे पहला इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ था और अफ्रीका से फिर वो दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है। अफ्रीकनों का रंग तो काला होता है, लेकिन उस आदमी के उसकी रात जो थी वो काली नहीं हुई, बल्कि जिन मुल्कों में गई उनकी आबो हवा के असर से उनका रंग आहिस्ता आहिस्ता मिट कर सफेदी मार भी हो गया, फिर सुर्खी मार भी हो गया। मगर पहला इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ और कहते हैं वो औरत थी। पहली शख्स जो पैदा हुई है वो औरत थी और उससे फिर आगे बच्चे पैदा हुए हैं। हेलो जी। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਲੰਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਬਸ। हजूर अल्लाह सुने जी की कहना पिया, कहना पहला इंसान दुनिया में, तो वो भी अफ्रीकनों का रंग, तो रंग क्या सू या और कोई क्या सू, मनु तो कुछ और समझ आया वे। ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਨਕਲ ਤੋਂ ਫਾਇਕ और दूर, बिल्कुल इन्हीं लोगों के बारे में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर इरशाद फरमाई थी कि कुर्ब क़यामत में ऐसे लोग दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे कि जो हदीसें तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादों ने सुनी होंगी। इनके बारे पहले ही बता दिया गया है। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਰਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ WhatsApp ਜ਼ਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਮੰਗੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੋ। आपने मुसलमानों से झूठ बोला है कि जी मुसलमान थोड़े क्या मैं सेव करके ना फिर सुनाना थे तो काफरों पर गालिब आ गए। वो
शुरू तो लगाया फिर नहीं शाहिद नहीं भाई। मैं WhatsApp ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ आपने ਨਾ सदियों से मुसलमानों से झूठ बोला है कि जी मुसलमान आपने सदियों से मुसलमानों से झूठ बोला है कि ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ऐसा आपने सदियों से मुसलमानों से झूठ बोला है कि जी मुसलमान थोड़े थे तो काफिरों पर गालिब आ गए। वो इसलिए आए कि जब खालिद इब्न वलीद यहाँ से तलवार लेके निकले ना तो रोमन जनरल ने भी तलवार ही उठाई हुई थी। अगर उसके हाथ में क्लाशनकोव या लेजर गाइडेड कोई गन होती तो हजरत खालिद इब्न वलीद तो अपनी फोर्स से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। 2 किलोमीटर दूर से उसने शहादत तक पहुंचा देना था, जो आज हो रहा है। EKP में आप देख ले, लेटेस्ट असला 2 किलोमीटर से वो थर्मल सेंस करके वो इक्विपमेंट लॉक करता है कि ये बंदे 2 किलोमीटर दूर से, और एग्जैक्ट हिट करते हैं। और हमारी पुलिस के पास जिस किस्म का वेपन है वो तो 200 फुट से भी ना काम करे। अंदाजा कर, और जी थोड़े थे हम गालिब आए खुदा के लिए। मुफ्ती साहब, ये उसने ये जो तौहीन की है, ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब आए हैं और ये कह रहे हैं कि बात तो सच है, बात तो सच है। गुलाम मुस्तफ़ा, ये गुलाम मुस्तफ़ा कौन है ये? जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने कहा कि सच है। चलो नस गए जे। फिर ले लो कर हाँ, अल्लाह माफ करे, कोई ना ही तो गुफ्तगू करने वाला कोई सामने आता है, और अगर कोई आता ही है तो वो बक 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 करके बस दौड़ जाता है। अल्लाह माफ करे, ऐसे फितने के अंदर हम गिर गए हैं। एक फितने का दरवाज़ा बंद नहीं होता, दूसरा फितना शुरू हो जाता है। तौबा तो अच्छा जी, तो इन्होंने इसने बोला बात कि की है, जो इसने बात की है कि सदियों से झूठ बोला है, हालांकि कुरान पाक बयान करता है, यानी कि ये क्या बात कर रहे हैं शाह साहब? जरा इसके ऊपर जरा थोड़ी सी अगर कर दें आप। कौन सी बात? शाहिद भाई इधर वीडियो दोबारा चलाना। ठीक हो गया। ये इसका मुझे जो इसकी समझ आई है ना, मैं मुसलमानों से झूठ बोला है कि जी मुसलमान थोड़े थे तो काफिरों पर गालिब आ गए। वो इसलिए आए कि जब खालिद इब्न वलीद यहाँ से तलवार लेके निकले ना तो रोमन जनरल ने भी तलवार ही उठाई हुई थी। अगर उसके हाथ में क्लाशनकोव या लेजर गाइडेड कोई गन होती तो हजरत खालिद इब्न वलीद तो अपनी फोर्स से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। 2 किलोमीटर दूर से उसने शहादत तक पहुंचा देना था, जो आज हो रहा है। EKP में आप देख ले, लेटेस्ट असला 2 किलोमीटर से वो थर्मल सेंस करके वो इक्विपमेंट लॉक करता है कि ये बंदे 2 किलोमीटर दूर से, और एग्जैक्ट हिट करते हैं। और हमारी पुलिस के पास जिस किस्म का वेपन है वो तो 200 फुट से भी ना काम करे। अंदाजा कर, और जी थोड़े थे हम गालिब आए खुदा के लिए। हाँ जी, बात ये है कि देखें, जो मुसलमान है ना, मुसलमान ऐसा गयूर होता है, मुसलमान ऐसा गयूर है, ऐसे गैरत वाला है मुसलमान कि वो अपने मुसलमानों की जो फौत शुदगान है, जो हमारे बाबे बुजुर्ग, जो हमारे अजदाद थे, जो हमारे जिनकी हम नस्लें हैं, वो उनके वाक़यात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। वो कहता है यार मुसलमान थे यार, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, और मैं इसके ऊपर अब क्या कहूँ, क्या इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ जनाब। एक बंदा जब बेगैरत हो जाए
اور ایک بندہ جب ٹاؤٹ ہو کافروں کا، اور ایک انسان نے جب اپنی غیرت و حمیت بیچ ڈالی ہو کافروں کے آگے، تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ آج اگر جنگ ہوتی ہے، بلکہ حالیہ ایک واقعہ ہوا ہے، اسرائیل کے اوپر حملہ کیا چند مسلمانوں نے، ان کے پاس جو تھا انہوں نے وہ اپنے تئیں انہوں نے کیا۔ مسلمان کبھی ہار نہیں مانتا، مسلمان جہاد کے اندر وہ کبھی پشت نہیں دکھاتا۔ وہ مسلمان فلسطین کے جو گھرے ہوئے تھے خوف و ہراس کے اندر، اور جناب بربریت کے اندر ان یہودیوں کی، انہوں نے پھر آخری حل اپنا یہی سمجھا کہ بھائی کیوں نہ پھر یا مرو یا مارو، دو میں سے ایک کام ہی ہونا ہے، مر تو ہم پٹ تو ویسے بھی رہے ہی ہیں۔ تو مسلمانوں نے، وہ چند مسلمانوں نے ہلا بول دیا یہودیوں کے اوپر۔ وہ جب ہلا بولا ہے انہوں نے، تو اس ٹائم ہی ہمیں بھی پتا تھا کہ بڑی مشکل، بہت مشکل ہے فتح، لیکن اس ٹائم بھی پورا عالم اسلام حمایت کر رہا تھا ان فلسطینیوں کی کہ بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ کیا اس ٹائم ہم یہ براڈیں کرتے، اوئے ہوئے تم نے تو ایک بہت بڑی ایک پہاڑ سے ٹکرا گئے ہو تم، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا، اور تم یہ تم وہ، ان کے پاس تو میزائل ہیں، ان کے پاس تو کلاشن کوفے ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے اسلحے ہیں، ایٹم بم ہے، اور بڑے بڑے، اور تم کچھ بھی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کبھی کسی مسلمان نے جنگ بدر کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہو؟ رتی برابر کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو کہ وہ دیکھو ادھر 1000 کا لشکر جرار اور تربیت یافتہ خون خار تھے کافروں کی طرف، اور ادھر 313، اور ان کے اندر بھی سارے جنگجو نہیں تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جن کو صحیح طریقے سے مطلب جنگی مہارت نہیں تھی، لیکن نہیں، آج تک 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، اس جنگ بدر کے اوپر کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی ایک مسلمان نے۔ اب وہ دیکھیں یہ ظالم انسان وہ کیا نقشہ کیا پیش کر رہا ہے مسلمانوں کا۔ یہ اصل میں اسلام سے اس کو نفرت ہے، صحابہ سے نفرت اور بغض اور عناد ہے، جو وہ وقتاً فوقتاً نکالتے ہی رہتا ہے۔ یار آج ایک مسلمان، یہ حالیہ کتنے واقعات ہوئے ہیں، وہ قرآن جلایا جا رہا ہے، چاروں طرف پولیس کھڑی ہے، ان کے جنگجو کھڑے ہیں، ان کے کافروں کے مسلح لوگ کھڑے ہیں، لیکن ایک مسلمان، صرف ایک مسلمان وہ مجمع سے اٹھتا ہے اور اس کے اوپر وہ اس کو قتل بھی نہیں کرتا، بلکہ صرف ایک تھپڑ مارتا ہے۔ تو اتنی پوری دنیا اسلامی کے اندر اس کو پذیرائی ملتی ہے، اور کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ دیکھو جی اس نے تو ادھر تو کلاشن کوفے لے کے کھڑے تھے، دیکھو جی ادھر تو مسلح لوگ کھڑے تھے، تو دیکھو جی اس نے بڑی بے وقوفی کی ہے جی، دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی۔ نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کے مقابلے میں جب کافر آیا ہے تو دوسرا مسلمان اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور اس کی اتنی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ تو عام سے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور چہ جائے کہ جب صحابہ کرام، اور چہ جائے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات کے اندر شامل ہوئے، اور ان کی تو بات ہی کوئی اللہ ہے،
इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? सीना जलाने के अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। और कितने बेगैरत लोग हैं जो ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं और ऐसे शख्स को प्रमोट करते हैं। ये हैं वो चीजें मुसलमानों, ये हैं वो चीजें। मुझे बड़े बड़े मुसलहीन के कमेंट्स आते हैं, और ना जी ना, मुफ्ती साहब मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, मुफ्ती साहब अपनी जुबान सही रखो, मुफ्ती साहब आप तो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब नहीं, इतना गुस्सा नहीं, मुफ्ती साहब वो भी तो मुसलमान है ना, इंजीनियर मिर्जा, और मुफ्ती साहब वो भी तो कलमा पढ़ता है, मुफ्ती साहब। तो इस किस्म के कमेंट बड़े आते हैं मुझे। ये हैं वो चीजें मुसलमानों। जी बोले जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा फाहिद साहब का कोई पूछ लीजिए ना, ਇੱਕ ਮਿੰਟ कोई जवाब ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਹਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਫਾਹਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ओके। मुझे बताएं, एक खालिद इब्ने वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद, मुझे बताएं, एक खालिद इब्ने वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्ने वलीद भी निकले तलवारें लेकर, और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके सामने? लखती लानत है भाई, जमीनों आसमान की सारी लानतें इकट्ठी कर लें। मिर्जा जूनियर जेलमी, तेरे ऊपर लानत, तेरे माँ प्यो ते लानत, और तेरे मनन वाले ते लानत होए। पूरे जमाने की जग की लानतें इकट्ठी कर ले, वो कम है तेरे लिए। ओए तू मुकाबला खालिद बिन वलीद जो साहबी हैं, उनका मुकाबला लानत के बच्चे तू करवा रहा है कि यहूदी के साथ, खबीस के बच्चे। और लख दी लानत है भाई, दुर 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 कुत्तिया। अच्छा जी, फहाद साहब, बाजवा साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। बाजवा साहब क्या कहना है आपने? हाँ, मैंने पूछना था मुफ्ती साहब से कि वो जो हमला हुआ उसका नतीजा क्या निकला? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਠ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ नहीं, ਨਿਕਲਿਆ? मैं तो लॉजिक देखे, ਲਾਜਿਕ ਕਾਦੀ ਲਾਜਿਕ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਜਿਕ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर ये शर्म शर्मा। की बात है इसमें। हाँ, सुने, आप एक मुसलमान सवाल जिंदाबाद, पूछे, आप इस्लाम इस बात में आ जिंदाबाद, जाते हैं। मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, मैं तो बेशक खुद कहता हूँ। मुनाफकत का भी कोई हल ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक 2 मिनट दे मुझे, अगर इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूँ। और नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਠ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। नहीं, मैं आपकी बात हाँ, की नहीं बात नहीं ही नहीं कर नहीं रहा नहीं था, की नहीं ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जी, ਸਾਡੇ और ਸਾਹਮਣੇ अहमद ਤੁਸੀਂ को- ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਏ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ है भाई ऐसी। इस्लाम की बात करें, मुसलमान की बात करें, मुसलमान की आप इज्जत की बात ही बात नहीं करें। करने दे रहे तो मैं कैसे बात करूं? ऐसे दंदियां कड्डो बस। कमाल है यार। अच्छा फहाद साहब, मेरा एक सवाल का जवाब दियो। जी फहाद जी, साहब, मिर्जे गुलाम कादियानी का भी तो यही वतीरा सी ना कि गोरियां कोलों डर के उन्हें फतवा दिता कि जहाद खत्म हो गया। ठीक है, हुण अल्लाह तो बाद ए पाक गवर्नमेंट दी जेड़े कि गवर्नमेंट है नहीं सी। शायद भाई, शायद मियां तैमूर सही गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। तैमूर गल करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तेरा ही वालेकुम केस। सलाम। मुफ्ती साहब, शाहिद भाई साहब, दोस्त भाई, इनको सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब से अगर कोई थोड़ा टाइम मिल जाए तो
सलाम। अच्छा, मैं तो कह रहा था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तो उसको तो छोड़े ना, वो तो काफिर था ना। नहीं 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 नहीं, नहीं तो उसको इसका क्यों छोड़े, उसको एक क्यों एक छोड़े, सेकंड तैमूर, उसको तैमूर क्यों एक नहीं छोड़े? नहीं, मेरा कहने का तैमूर एक मतलब है कि सेकंड, इस मुझे बात पहले का उस मुझे बात अच्छा फवाद, चले, मुझे पहले जी ये जो 2 वीडियो चलाई है ना मैंने, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ये जवाब लेना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ने भी अपना ईमान बेच के तो ये फतवा दिया था, कुफर का फतवा था कि जिहाद ख़त्म हो गया है, अल्लाह के बाद अब इस पाक गवर्नमेंट की इताअत करनी है। तो अगर उस पहलू को देखें और इस बयान को देखें कि कुफ़ार के सामने हम डर जाएं कि जनाब उनके पास असला ज़्यादा है और हम जिहाद नहीं कर सकते, हम जो है चुप करके घुस जाएं, बिल्लों में घुस अच्छा जाएं, यही कहने का अच्छा मतलब है ना उसके। अच्छा। अब नहीं मैं नहीं जवाब दे शाहद सकता भाई हूँ? एक मिनट ठहर जो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਇਹਨਾਂ ने सुनी नहीं है, तारा खेल भाई भी आ गए ने। तारा नहीं खेल नहीं, भाई मैंने सुनी अस्सलाम है, वालेकुम सुनी है वरहमतुल्लाहि मैंने। जी वबरकातुहू। सर, वालेकुम सलाम नहीं नहीं, वो आपने नीचे कहा था ना कि एक बार और चला दें, तो हम फिर भी चला देंगे, लेकिन तो हमारे ना जज्बात मजरू होते हैं। पहले तो हम करते हैं आपसे माजरत कि हम दोबारा नहीं चला सकते। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने मिर्ज़ा जूनियर जेलवी ने जो बयान दिया है कि ये सर सदियों मैं से उसको कहानी डिफेंड नहीं कराई है करने आया, मुसलमानों को। मैं उसको डिफेंड नहीं करने नहीं आया, नहीं, मैं ये तो सारे कहते हैं। नहीं नहीं, बाजवा बाजवा साहब आप माइक म्यूट, एक मिनट ठहरे। मैं आपको पहले बता देता हूँ जो आप कहेंगे कि हम उसके कोई फॉलोअर नहीं है, हम उसको डिफेंड नहीं करने आए, हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हम किसी को नहीं मानते, ये चीज़ें हमें पहले मौजूद हैं। ये सारे मरज़इयों का यही वतीरा है, ये छोड़ दें आप बात। तैमूर आप भाई। ये बताएं हमें कि ये जो इसने बकवास की है, बाजवा साहब एक मिनट ठहरिएगा, ये जो बकवास इसने कही है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि 1000 खालिद बिन वलीद निकल आए थे, आगे से दाढ़ी मुंडा यहूदी निकल आए क्लैशन कोफ लेके, तो एंड रिजल्ट इसने जो तौहीन की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पहले किसने बता बोला? दें, क्या नजरिया रखते फिर हैं? रजल ने बोला। वो तो गलत बात है एक ना। मिनट ठहरे जरा, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। फाहा साहब एक मिनट ठहरो जरा, तराखिल भाई एक मिनट ठहरो, शाहद भाई जरा दोबारा चलाना क्लिप। ओके, मुझे बताएं, एक खालिद इब्ने वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्ने वलीद भी निकले तलवारें लेकर और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके सामने? जी वो एंड रिजल्ट भी बता दे ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਫਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਜਰਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਲਿੱਪ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ एंड रिजल्ट ने ਕੱਢਿਆ है कि मुसलमानों को, वो जो पहला मैंने सेंड किया था वो भी सुना दे जरा, बात क्लियर हो, कोई टिचने भी बाकी ना रहे। कि जी मुसलमान थोड़े थे तो काफिरों पर गालिब आ गए, वो इसलिए आए होती तो हजरत खालिद इब्न वलीद तो अपनी फोर्स से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, 2 किलोमीटर दूर से उसने शहादत तक पहुंचा देना था, जो आज हो रहा है। केपी में आप देख ले, लेटेस्ट असला 2 किलोमीटर से वो थर्मल सेंस करके वो इक्विपमेंट लॉक करता है कि ये बंदे 2 किलोमीटर दूर से, और एग्जैक्ट हिट करते हैं। और हमारी पुलिस के पास जिस किस्म का वेपन है वो तो 200 फुट से भी ना काम करे, अंदाजा कर। और जी थोड़े थे हम गालिब आए खुदा के लिए। जी पहले तो हम पूछेंगे तारा खेल भाई से। फाहा साहब एक मिनट ठहरेगा। तारा खेल भाई, ये 2 क्लिप आपको चला के दिखाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार तैमूर भाई, ये तो हमारे मतलब कोई मेरे पास लिखी हुई हदीस नहीं है, मगर आपको मालूम है कि जब हमारे बाबा ने यानी इस्लाम अच्छा, यहाँ पर एक बात कर लूँ, ये बात में बात कर लेना। कुरान पाक भरा पड़ा है, अहादीस नबविया भरी पड़ी हैं, मैं सिर्फ एक कुरान की आयत बयान करूँगा और मजीद भी अगर कोई देखना चाहे तो हम बता देंगे। कुरान पाक इतनी नमाज के बाद अगर ताकीद है तो सबसे ज़्यादा जिहाद के ऊपर ताकीद है। मुसलमानों को इतना जिहाद के बारे में ताकीद की गई, और बाज ऐसे थे
کہ جن کے ذہن میں تھوڑا سا جہاد کے متعلق ڈر اور خوف آیا، تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء آیت 78 کے اندر، میں ترجمہ یہاں پڑھوں گا، اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گرتد پہنچاتا ہے تو اے محمد تم سے کہتے ہیں کہ یہ گرتد آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، کہ دو کے رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، بہرحال جہاد کی اتنی اہمیت اور اتنا کہ بھائی دشمن کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، مسلمانوں ڈرنا نہیں ہے، چاہے 1000 کا بھی لشکر جرار سامنے آ جائے، ڈرنا نہیں ہے۔ وہ واقعات نہیں پتہ آپ لوگوں کو کہ جناب تلوار ٹوٹ جاتی ہے، تلوار گر جاتی ہے تو بھائی چھڑیاں لے کے، لکڑی کی چھڑیاں لے کے جہاد کرتے ہیں، کیا وہ نہیں پتہ ہے؟ اور یہ ڈرا رہا ہے کہ دیکھو جی ان کے پاس ایٹم بم تو وہ لیزر پتہ نہیں بمب تو پتہ نہیں کیا بمب تو کہ یہ بمب تو یہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ یہودیوں کا خوف مسلمانوں کے اندر بڑھکا رہا ہے کہ یہودیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہودیوں کا ٹاؤٹ ہے یہ یہودی پل ہے، یہ مرزا قادیانی بھی یہودی ٹاؤٹ تھا، اور یہ مرزا جونیئر جیل میں بھی یہودی ہے، یہودیوں کا یہ نجائز اولاد ہے، کسی یہودی کا بچہ ہے یہ۔ جی اب آپ بات کر لیں تیمور۔ یار پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو بابا تھے جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا نام کیس تھا، وہ افغانستان سے گیا، یہ میرے پاس لکھی ہوئی روایت نہیں ہے، مجھے وہ عالم صاحب نے منع کیا تھا کہ یہ باتیں مت کیا کرو، لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں بات کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ افغان آئے تھے، انہوں نے وہ غزوہ میں حصہ لیا، ادھر جہاد کیا، جیتے، خالد بن ولید کی بیٹی کے ساتھ جو ہے ہمارے بابا کا نکاح جو ہے وہ پڑا گیا، یہ ہمارے نانا ہے یار خالد بن ولید، تو اس کے بارے میں جو بندہ بکواس کرتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ دوسری بات کہ افغانستان کے اندر پھر وہ تھرمل ہتھیار پھر کیا کر رہے تھے کہ ان کو بھی ہرا دیا، اور وہ یار بھائی کیا آپ کہانیاں لے کے آگے ہیں، خالد بن ولید کی بیٹی کے ساتھ آپ کے بابا کا بیاہ ہو گیا ہے یا کیا یار؟ مفتی صاحب مجھے وہ بندے یار بھائی تھوڑی مہربانی کی تسی یار حد ہو گئی ہے، صحابہ دیاں بچیاں تسی یار تیمور ہو کی کردا پیا تو چپ کر کے بیٹھا ہے؟ نہیں ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਜਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਸਲ ਨੂੰ? نہیں ताराखिल भाई یہ چیز نہیں ہے۔ اچھا فہد صاحب آپ ذرا بات کیجئے گا جناب، یہ بتائیے گا ہمیں کہ یہ توہین حضرت خالد بن ولید کی ہے یہ نہیں؟ اچھا میری 3 باتیں تھیں، وہ تینوں باتوں کس کا کہ آپ ادھر لے آئیں، اگر اجازت دیں تو میں جو پہلی بات کرنے آیا تھا وہ کر لوں پہلے۔ نہیں وہ جو ہم نے ہمارے سوال کدھر جانے ہیں، نہیں وہ کدھر جانے ہیں جو ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی آپ کا سوال تو بعد میں آئے گا نا، آپ نے کہا جی وہ رزلٹ کیا نکلا تھا، رزلٹ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے یہ جو چیز نے چک ماری ہے اس کا جواب کون دے گا؟ چلیں اگر آپ تحمل سے جواب سن لیں تو میں دے دیتا ہوں۔ بسم اللہ کریں، دیں جواب۔ جی اچھا بات یہ ہے کہ اب اگر آپ جذبات کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر تو وہ بالکل غلط بات ہے نا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا لاجک کے ساتھ دیکھیں گے تو ان کمپیریزن اگر آپ تلوار کو ایک مطلب ماڈرن ویپنری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو وہ تو obviously سی بات ہے۔ یار بھائی ہمارا دین مذہب جو ہے نا یہ جذبات والا نہیں ہے، کوئی منطق فلسفہ ادھر نہیں چلتا، میں نے کہا ہمیں لاجک کون سی لاجک لے کے آگے ہو؟ پورا یہ ہمارا دین اسلام کیا لاجک کے تحت ہے؟ عقل کے پیمانے کے اوپر اس کو تولنا ہے؟ بالکل مولا علی بالکل مولا علی کی میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ اچھا ایک منٹ جب پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا حکم آیا، مولا علی نے ارشاد فرمایا
मौला अली इरशाद फरमाते हैं अगर मैं दीन के अंदर अकल का दखल दूं तो मैं लोगों को कहूं कि अपने मोजे उतार के उसको धो के फिर पहनो, लेकिन शरीयत ने जब कह दिया कि इसके ऊपर मसा करना है तो बस यहाँ पे अकल के दरवाजे बंद, अकल के घोड़े नहीं दुड़ाते हम दीन के अंदर। आप अकल 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 को ही सब कुछ समझ लिया। बेशक सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि हम अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते, इसी वजह से आज हमारी उम्मत बहुत पीछे जा चुकी है। अच्छा, आपको ये मुनकर कुरान नहीं लगा इस बात में कि सदियों से झूठ बोला है मुसलमानों ने, मुसलमान थोड़े थे गालिब आए थे, क्या कुरान ने कब इनको वाजिया नहीं की? नहीं, आप देखें ना, अब इधर से बात को मिसकोट कर रहे हैं। वो जो जंग का उस जो जंग का हालात है वो ये तैमूर आपने नोट किया ये बीच में वेट कौन सी कर गया है? आपके वो ना वेट कर गया ना, वो कह गया, कह रहे हैं मुसलमानों ने अकल के घोड़े नहीं दुड़ाए, तो इसीलिए तो ये जमाने के अंदर पस्ती जो है ना मुसलमानों की है ना, ये देखा ना वो कर गए ना। नहीं सर, ये जुबान कोई और है, इधर जुबान मुफ्ती साहब आपने सही पकड़ा है। तैमूर ये किसी और मिशन पे आया है, मिशन बंदे का मिशन समझीदा बंदा आया कि मिशन दे चले कोई जो तो नजर आंदा पे होनी जे है हो रहे कुछ, कोई मसला नहीं यार। आप नई बात सुनना चाहते तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा है शाह साहब, आपने ये पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ा है। सर, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दज्जाल साहब जो से हैं उनको आप क्या समझते हैं? वो तो एक लानती कुफार था, काफिर था एक। और कादियानी आपके भाई हैं? बिल्कुल नहीं, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, मिर्ज़ा जूनियर जेल भी तो कहता है वो अगर हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। क्या बस यही कसूर है उनका, वो हमें काफिर कहते हैं? मिर्ज़ा जेल में ही छोड़ देगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा ना सर। नहीं छोड़ेंगे आप? क्यों, आपका कुछ नहीं लगता मिर्ज़ा जूनियर जेल में आप डिफेंड करने आए हैं बाजू का? मारे गई आया था ये मैं कैमरा ऑन करने लगा हूँ भाई, जरा देखो जी। और छੱਡ दो यार तैमूर, इन्हें एवं बस ना। अच्छा यार, ये जो था हवाला मिर्ज़ा कादियानी वाला रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा 158 के ऊपर, इसने कहा था कि अरब के लोग औरत की शर्मगाह को भी अबू दारस कहते हैं। अब ये अबू दारस की थोड़ी सी तहकीकात यहाँ पेश करने लगा हूँ। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, शामिला सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रही होंगी। टोटल किताबें हैं 6111। इन टोटल किताबों में मैंने सर्च किया है अबू दारस, तो इसके 25 नताइज मेरे सामने आए हैं। अच्छा, अबू दारस ये असल में एक हदीस का एक रावी है। अबू दारस ये यहाँ पर मेरे सामने हदीस की किताब मुस्नद अहमद खुली है, और इसकी जिल्द 32 है, और सफ़ा नंबर 506 के ऊपर ये हदीस है 19,732। तो यहाँ पे अबू दारस साहिब जौर ये एक रावी है। वो अलग बात है कि ये वाला जो रावी है ये मजहूल रावी है, और इसकी जो असनाद है वो ज़ईफ़ के खाते में डाली हैं मुहद्दिसीन ने। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ 2-4 और हवाले मैं दे देता हूँ। ये मीज़ानुल एतदाल के अंदर ये जिल्द नंबर 4 सफ़ा 522 के ऊपर ये अबू दारस रावी का जिक्र है। कहते हैं कि इस रावी को इब्ने मुईन ने ज़ईफ़ कहा है। ठीक है जी, ये ज़ईफ़ एक रावी है। आगे थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं लिसानुल मीज़ान की, तो लिसानुल मीज़ान भी कहते हैं कि अबू दारस एक मजहूल रावी है। ठीक है जी। अच्छा, अगर बात हम कर लेते हैं, मज़ीद और बड़ी किताबें हैं, लेकिन अब आ जाते हैं इस हवाले के ऊपर कि अरब वाले औरत की शर्मगाह को अबू दारस कहते हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी ने कई एतबार से गलत बात की है। पहली बात तो ये कि अरब के लोग औरत की शर्मगाह के लिए अबू दारस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी गलत बात ये कि एक हदीस के रावी को
माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशद, उसने औरत की शर्मगाह कहा है, ठीक है जी। और तीसरी गलत बात यह कि मिर्जा कादियानी जाहिल मुतलक है, उसको ना दीन का पता ना दुनिया का पता ही कख नहीं है। अबू जाल था ये मिर्जा कादियानी। अब इस चीज को कोई गलत साबित कर सकता है तो आ जाओ भाई, कोई कादियानी हो, आओ नेड़े लगो। हाँ है कोई कादियानी? मर कप गए हो, मर जो। यार शायद यबड़ियां मारन वाले ना इन्ना टाइम ना दिया करो, एवं यबड़ियां मार के दे गल मुफ्ती गल कोई साहब यार। अच्छा एक बात है कि खुदा की कसम मुसलमानों को जरा गौर करो, अपने गिरेबान झांक के देखो कहाँ पे खड़े हो तुम। मतलब तुम एक मुसलमान के पास एक सतही लंबी होना चाहिए था, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। एक दीन इस्लाम के बारे में जो थोड़ी बहुत भी मालूम है वो भी नहीं है एक बंदे के पास, तो वो कैसा मुसलमान है यार बताइए? हाँ जी, वो कैसा मुसलमान है जी? शायद भाई मौसी साहब, मैंने सुना हुआ है कि जब 1965 में इंडिया से जंग हुई थी ना हमारी, ठीक है, तो हमारे टैंकों की जो रेंज थी वो इतनी नहीं थी कि दुश्मन तक गोले पहुंच सके। लेकिन जब जंग के बाद आईनी शवाहिद जब मिले तो अल्लाह ताला के करम से वो एक इम्पॉसिबल बात थी जो पॉसिबल हुई। तो क्या अगर ये जो मिर्ज़ा जेलमी ने बात की है कि जनाब उत्थे तोपां पई दियां तो उन्होंने जंग ना करो, हद सीधा आलम है चीज समझ लें कि कितों गल करना पे भाई। इस्लामी जंगें भी जो हुई हैं, मैं नाम नहीं लेता उन जंगों का, कई ऐसी जंगें हुई हैं कि बज़ाहिर काफरों के सामने मुसलमानों को शिकस्त हुई है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा खुदा की कसम कि कभी भी उन जंगों को किसी एक मुअर्रिख ने भी लिखा हो कि भाई नहीं जी मुसलमान ये हो गए थे, ये हो गए। नहीं, मुसलमान तो अपने मुसलमान भाई की ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करता, बल्ले ओ बल्ले बल्ले मुसलमाना कमाल कर छड़े जो मुसलमान तो वो हैं यार। और इधर इस बगैरत आजम को देख लो, वो हज़रत खालिद बिन वलीद का मुकाबला करवा रहा है कि यहूदी से, अस्तगफिरुल्लाह, लख दी लानत है भाई। और ऊपर से देख के वो अभी आया था मरज़ई, कान टूटा, वो उसका दिवा कर रहा है। कमाल ही हो गई है यार। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है मुफ्ती साहब, ये वो बच्चे हैं बर्गर यार। फिर शायद भाई फिर लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ कहना है कि तुम गाला कट दे। नहीं मुफ्ती साहब सही है, वो तो अगे भी कहते हैं। अच्छा हाँ जी, मिर्जे दी किताबां पढ़ ली ना तो गल को नास्ते गल आने। हद पे हिस्सी जी। मुफ्ती जाहिद साहब वेलकम हो गया आपका भी, और तैमूर भाई आप नीचे चले गए। गुजर अस्सलाम वालेकुम, दानियल वेलकम, आफ्ताब भाई हैं शायद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। सब भाइयों वालेकुम अस्सलाम। हसन बाबू सब ठीक ने? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, मुफ्ती साहब, कादियानी के अलावा थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है, उसके ऊपर बात कर सकता हूँ? जी जी पूछें। अच्छा, एक नात का शेर है, सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने। तो
अभी इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ ये फिर हो जाता है कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लेके खाना, जिसके ऊपर किसी और का नाम लिया गया हो, तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। सरकार दे रंग विच सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने, एक दो से बात कर रहा था तो नहीं, मैं तो चलो बात हो रही है। तो सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने, जी तो क्या हो गया इसमें? अभी क्या इतना? इसी बात पे बात शुरू होगी ना कि ये सरकार का लंगर ये गलत है क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेके खाना खाना यार अल्लाह दा नाम इत्थे कित्थे आ गया जे? अल्लाह दा ही नाम हुंदा वे। बाप बेटे नूं रोटी दिंदा वे ते कौन कहंदा कि भाई ओहदे बाप दा लंगर नहीं? दुनिया दा हर बंदा कहंदा मेरे प्यो दा लंगर है, ते उत्थे भी फिर अल्लाह दा लंगर क्या करो ना? ओ यार इतराज करने वाले भी पता नहीं किंज दे लोग ने यार, अल्लाह ही जानदा है। पूरी दुनिया मेरा सरकार दा लंगर खा रही है। सरकार दा लंगर तो मुराद है सरकार दा सदका, हजूर दा सदका। यार असि अपनी कारां दे पिछे ऐसी लिख के लवाने ये कार मेरी माँ की दुआ का सदका है, वो लिखते नहीं है जो कुछ भी है मेरी माँ दा है। ते उत्थे भी लिखा करो ना अल्लाह दा सदका है जी, अल्लाह दी दुआ वे ते अल्लाह दा वे, जो भी उत्थे नहीं लिखते है। और यार हकीकत तो यही है कि सब कुछ अल्लाह का ही है भाई, बेशक अल्लाह के हुक्म पर ही चल रहा है सब कुछ। जी जी हर चीज अल्लाह की मलकियत में ही है। वो लेकिन भाई ये अगर कहा जाए कि ये मेरे सरकार का लंगर है तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें तकलीफ क्या है? पेट में क्या दर्द है? जबरदस्त। अरे दूसरी बात है, एक और भी दस दिया ना, जिन्हें नहीं मनना ना मन्ने भाई, जाओ जाके ना मनो। हुण साडे उलमा ने इन्हां नूं समझाया और मतलब किताबां इहदे ते लिखियां जा चुकियां, दलाइल इकट्ठे हो गए। वो जेड़ा इन्ना कुछ दे बावजूद भी नहीं समझदा पे ना समझे भाई फिर जाए पहाड़ में जाओ जाके, तुहानू समझाना कोई साडे ते फर्ज वाजिब ते नहीं, तुहानू समझांदे फिरिए। बस इतना ही है जनाब आफ्ताब साहब। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। इन्नी सिर पीड़ ना लिया करो इंज दे इतराज़ां दी कि इन्हां नूं हुण असीं लै के बैठे रहिए। जिन्हें नहीं मनना ना मन भाई, उन्होंने कहो जा परां बढ़ जा। अच्छा हजूर अला शाह एक मिर्जाइयां दा ते चलो ये नजरिया है, ये है सी ये जेड़ा मिर्जा इंजीनियरिंग दे छोकरे ने इन्हां दे भी अजकल बहुत सारियां गुस्ताखियां जेहड़ियां कर लै पे बरोड़ा दे बैठ के। ओ भाई ये होई है कि मेरा एक ही हल है, लित्तर फेरो बस, और कुछ नहीं, कोई हल नहीं। कि किन्ना समझाओगे यार? किन्ने साडे वेखो इन्ने उलमा इकराम समझांदे पे, मुफ्ती अली नवाज ने घट समझाया है, मुफ्ती राशिद रिजवी ने की घट समझाया है, साडे बड़े बड़े मुफ्तियां ने इकराम उलमा इकराम समझा रहे, नहीं कोई समझदा। वे लितरा जोगे ने ना, लितर फेरो जिथे लपन लितर फेरो बस बस अल्लाह ला खैर तल्ला बस। हुण समझन समझाने वाले दरवाजे बंद हो गए ने, लितर फड़ के रखो हाथ च। वो कहते हैं बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। जो इस वास्ते इस तरीके नाल अपना नाम वधा रहे ने। और नहीं जी कोई नहीं जी, एक समझाने का भी एक तरीकाकार हुंदा ना। उलमा ने इलमी तौर पर इन्होंने बड़ा समझाया, दलाइल दिते, बड़ा कुछ होया, नहीं कोई समझदा पिया ते फिर जी जब सीधी उंगली से ना दिखे तो उंगली टेढ़ी करो बस, फिर अल्लाह ते खैर तल्ला बस, ऐसे को तैसे ही सही। बेश बेश जी जट लैब बैक वाले भाई कुछ कहना चाहते थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जनाब मुफ्तियान कराम, हाँ आप हमारे सरों का ताज हैं। हम इस काबिल नहीं है कि भी हम आपके सामने बैठ कर कोई ऐसी बात कर सकें। उसके बावजूद भी मैं सिर्फ मिर्ज़ा जैलमी के लिए एक जुमला कहना चाहूँगा, जेलम की कुत्ती, बस इसके लिए यही जो है ना मेरा जुमला है। घर की ना घाट की। ठीक हो गया।
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਲਗਾ ਲੈਣ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪਰਾਟ ਦੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ और ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਿਆ ਨਾਸਿਰ ਹੋ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਾਫਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈਣ ਤੇ ਕਾਫਰ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अब ये देखे ये एक मुसलमान होता है, मुसलमान से बात करके अल्लाह की कसमें मजा जिहा होता है, भावें वो सीधा साधा आए उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो गजूर मुसलमान है, ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ है और अल्लाह रसूल सहाबा कराम बाबे बुजुर्गों का इज्जत एहतराम करने वाला है। ਉਹਨੂੰ मुसलमाना दे नाल इस्लाम दे नाल बड़ा प्यार है ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿਲ ਭਾਗ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। बेशक। अब वो देखे ना वो आए आके उसने पहली जो बात की उससे पता चल के बंदा क्या है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो फलस्तीनियों ने वो थोड़े थे लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत से टकरा गए, तो हमें तारीफ करनी चाहिए। तो कहने लगा है फिर उसके नताइज भी देखे जे कि नहीं की नताइज निकले। वो कहना ये चाह रहा था कि मुसलमानों की बर्बादी हुई है तो उन्होंने मुंह की खाई जमात अल्लाह। हाँ जी वो ये कहना चाह रहा था। उसकी एक बात नहीं हमें बता दिया कि बंदा क्या है, तुम्हें कोई इस्लाम का को पता ही नहीं है। अच्छा अब ये देखे यहाँ पर एक और हमारी एक जुर्रत देखिए, जब हम उन फलस्तीनियों की बात करते हैं तो आज तक आप नहीं सुनेंगे हमारे मुंह से, या मतलब मुझे नहीं पता किसी ने कोई इसके ऊपर कलाम किया है कि नहीं, तो मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल कि वहां सुन्नी शिया वाबी देवबंदी की आप बात नहीं सुनेंगे। हमें भी पता है कि वो कौन है, फलस्तीनी कौन है हमें भी पता है, लेकिन जब काफरों के मुकाबले में टकराने की बात आती है तो हम उनकी बात करते हैं, उधर फिर फिरके शिरके हम भूल जाते हैं। बस मैंने इतना ही कहना था। अच्छा हजरत ये फरमाएं, छोटा सा सवाल है जी, हाँ नाम में जवाब दे दीजिएगा। मुफ्ती जाहिद साहब भी हैं, आप भी हैं, कि क्या हम काफर मुर्तद ज़ंदीक के लिए हदायत की दुआ कर सकते हैं कि नहीं? नहीं जी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हदायत की दुआ के हदायत। अच्छा हदायत की दुआ तो कर सकते हैं जी, लेकिन ये है कि मर जाए तो उसके मगफिरत की दुआ मैं नहीं ये समझा था कि मगफिरत की शायद आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल कतन नहीं। यानी हदायत की दुआ हम कर सकते हैं। हदायत की दुआ तो फिर हर एक के लिए है ना, वो कि अल्लाह तुम्हें हदायत दे। जी तो हर एक के लिए है। जज़ाकल्लाह आलम वरसूल। अच्छा मुफ्ती साहब ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੇ? ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਹਣੇ? अच्छा ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ? नहीं मैं थोड़ा नाल है ना, इजाजत है मुफ्ती साहब को मंगी है ना। मुफ्ती साहब से इसलिए बोला है कि उनकी इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं होगा। आपसे सवाल ये है कि मेरी ब्रॉड पे ऑन करने के बाद सबसे पहले बंदे आप, और एंड तक मेरे साथ रहने वाला बंदा 2-3 हफ्ते पूरा महीना गायब रहे, तो इतना सा सवाल तो फिर बनता है ना। अच्छा ईमानदारी की गल है कि मैं आंदा रहा ते बैठदा रहा, मैं आईडी का नाम वगैरह चेंज किए, तस्वीरां चेंज कीतियां सर, मैं आके ते बैठदा रहा, लेकिन जिस तरह गालां शुरू हुई ना मैं फिर निकल जाता सी। ठीक हो मेरी और डिफरेंट आइडियाज मैं बनाइया फिर कि भी, क्योंकि मेरी आईडीज नूं ब्लॉक की रिपोर्टां हुंदियां रहियां ते ब्लॉक हुंदियां रहियां ते वो फिर दोबारा टाइम लगदा उन्हां तुहानूं पता है लाइव जाने वास्ते ते ओह ए वजह सी। अदरवाइज मैं आंदा सी ते थल्ले ही बैठ के ते मैं जनाब वो लाइक भी करदा सी ते, लेकिन चलो वो किसी वजह तो गालां शुरू होंदियां सन, फिर मैं निकल जांदा सी। चलो ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। और सब ठीक ठाक है ना? नाइस टू मीट यू अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह जी।
جی اور کوئی سوال کوئی؟ جی مفتی صاحب، جی مفتی میں زاہد تے صاحب تسی بھی جی مفتی ظاہر صاحب تشریف لے آئے نے تے لگتا ہے وہ مصروف نے شاید. حضور علیہ شان جدو اپنے بندے منافق ہو جان تے پھر انہاں واسطے کی دعا؟ نہیں دعا تے یار ویکھو نا ہے ہی ہے، لیکن اے وے کہ جدوں ٹھائی چڑھ جاندا پھر لتر پھیرو. نہیں ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ یا ਮੁਨਾਫਿਕ انج تو کر نہ ایک کرو منٹ یار آفتاب بھائی ایک منٹ یا جی انج امر کر لیا کرو کہ ਭਾਵੇਂ ਲਿੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰ ਕੇ ਦੁਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੋ ਕੰਮ. مفتی زاہد صاحب سرکار تسی بھی میوٹ کھولو. میری آنا بزی نے. اللہ اکبر. ہے تو تسی دھیان نہیں کیتا کنی دیر دا. جی اور کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. ویری گڈ ماشاء اللہ. دو مفتی صاحب بیٹھے نے. میرے تے اللہ دا بڑا احسان ہے کہ ایڈے محترم بندے بہنے نے میرے کو آ کے. ایک جنا اتر جاوے پھر. میں کہ اللہ اکبر. اچھا دو بیٹھ جانے میں ایک اتر جاوے تھا پھر. اچھا تسی دوویں بیٹھے دیو تو مدعا پھر لینے مرزا کانے دجال دے اتے. مفتی صاحب ایک ویڈیو تانوں دوواں نوں سنانا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو جے تو میں دوواں دے ہی کمنٹس لینا چاہنا. ہی امپورٹنٹ ویڈیو میں چلان لگا جے تے ذرا سنو تے اس خبیثاں دے ذرا عقائد دیکھو. صحیح گل ہے کہ یہ بے غیرت دے بچے لانتی نے. مر رہی. Excuse me, sir. You are keep saying Ahmad alayhi salam. This hurt us. His name was Mirza یار Ghulam Ahmad. شاہد بھائی میں غور نہیں کیتا، میں نماز پڑھنا بھائی، مینوں اجازت دیو. رب رکھ. چلو ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، ٹھیک ہو گیا. مفتی زاہد صاحب تسی کتے ٹر گئے؟ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی. نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی. ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے. جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے وہ، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے. تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں. یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے. اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے. اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.